of information. Let us engineer a sustainable future together through ISHRAE. Welcome to all. Welcome Jala sir. Welcome sir. Welcome everyone. Good morning. આજે આપણે એક વેબિનાર ટાઈપ ઓફ ચિલરનું કરીએ છીએ. એમના સ્પીકર તરીકે મિસ્ટર હાર્દિક શર્મા સાહેબનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માની છીએ કે એમનો મિકેનિકલ એન્ડ હેવેકમાં સારો એક્સપિરિયન્સના હિસાબે આપણને બધાને પાર્ટિસિપન્ટને લાભ મળે છે. આજનો આ વેબિનાર આપણે ચિલરનું ડોમેસ્ટિકનું એ પ્રમાણે ગાઈડલાઇન્સ હાર્દિકભાઈ શર્મા સાહેબ પાસેથી આપણે જાણશું. અને જે બી પાર્ટિસિપન્ટ છે અત્યારે ISHRAE મેમ્બરમાં એમનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે એ લોકો બી આ પાર્ટિસિપન્ટમાં જોઈન થયા છે. પિયુષભાઈ સાહેબનું ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ કરો. યસ, શ્રી હાર્દિક સાહેબ બ્લુ સ્ટારમાં ગુજરાત દાદરા અને નગર હવેલીનું પ્રાંતનો ચિલર બિઝનેસ સંભાળે છે અને એમણે નિરમા યુનિવર્સિટી અમદાવાદમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે અને ઉપરાંત અમદાવાદ ચેપ્ટરમાં CWC મેમ્બર તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા છે અને ખૂબ અનુભવી એન્જિનિયર છે. તો આ તો હાર્દિક સાહેબનો ટૂંકો પરિચય. હવે હાર્દિક સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરે. હાર્દિક સર. Yeah. રાજેન્દ્રભાઈ શું થયું? Yeah, exactly. Okay. Good morning. Thank you so much, Himanshu Bhai and entire leadership team of Rajkot sub-chapter. I am privileged to be a part of this webinar. And first of all, I would like to congratulate Himanshu sir and their entire office bearer team for establishing and taking this knowledge sharing society to the Rajkot district of Gujarat region. So to begin with, I am Hardik Sharma, and as PS Bhai has given a very good introduction of myself, I will not take much of the time. I will straight away go to the main agenda. So today's topic is type and selection of chillers. I hope everybody has seen or used or operated chiller, right? I would like to have a active participation of all the members. So can you please quickly answer? Have you used chillers anywhere or have you seen chillers? This type yes or no? યસ સર. હાર્દિકભાઈ સોરી હાર્દિકભાઈ ડિસ્ટર્બ કરું છું. શક્ય હોય તો ગુજરાતી હિન્દી રાખો ને, લેંગ્વેજ તો વધારે સારું રહેશે. श्योर. हाँ, तो आप सभी ने चिलर्स यूज किया होगा अपने कार्यकाल में. तो आप चिलर्स यूज किया है तो हाँ या ना चैट बॉक्स में यस और नो आप लिख सकते हो. I get the idea कि कौन से टाइप की ऑडियंस है. How can I proceed ahead with the presentation? So can I get the quick response from the attendees? Great. Avdesh bhai ye kiduje yes. Kusal bhai yes. Dipen Mehta sir yes. Okay. Great. Thanks for the response. So आज का एजेंडा हमारा मेन है कि मेन एजेंडा आई विल इंट्रोड्यूस द चिलर कि क्या चिलर होता है. उसके बाद हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ चिलर्स में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं और क्या उनकी एप्लीकेशन है. उसके बाद जो कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं चिलर सिस्टम में, कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम आप ले लो फॉर एग्जांपल, तो उसमें रेफ्रिजरेंट तो मेन एज अ मीडियम यूज होता ही है. तो
तो हम रेफ्रिजरेंट कौन कौन से चिलर्स में यूज होते हैं और क्या उनका क्राइटेरिया रहता है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन एंड कोर सब्जेक्ट है वो है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ चिलर्स की अलग अलग कौन से टाइप और तरीके के चिलर्स होते हैं और उसके भी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हम एक कंपैरिजन बनाएंगे कि क्या क्या कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है चिलर मार्केट में एट प्रेजेंट एंड पास्ट में भी क्या थी एंड फ्यूचर में भी क्या आ सकती है, तो हम वो भी कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑयल फ्री मैग्नेटिक चिलर उसका भी मेन एडवांटेज एंड उसका ऑपरेटिंग देखेंगे। एंड उसके बाद हम स्टार लेबलिंग रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बॉडीज रहती है उनका अलग अलग एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से लेबलिंग प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ने चला है, तो हम वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे विद द एफिशिएंसी डिस्कशन कि भाई कौन सा चिलर सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, एंड देन वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन द एंड। So this is the agenda for today. तो चिलर क्या है बेसिकली? चिलर एक रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है, जैसे हर कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम रहती है वैसे एक रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट है जो टेम्परेचर को कम करने के लिए या तो मेंटेन करने के लिए यूज होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर हम ह्यूमिडिटी भी जो होती है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड चिलर का मेन एडवांटेज ये है कि चिलर ना सिर्फ वाटर मतलब पानी को ठंडा नहीं करता, वो ब्राइन एप्लीकेशन जो आपको नेगेटिव टेम्परेचर पे ले जाना चाहिए, -5 चाहिए, -10 चाहिए, -25 चाहिए कोई प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए भी चिलर्स यूज होता है। तो चिलर्स इज बेसिकली अ रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट मेंटेन द टेम्परेचर। तो चिलर की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे हम अभी VRF या स्प्लिट एसी या विंडो एसी यूज करते हैं टू हमारा ह्यूमन बॉडी के कंफर्ट के लिए, तो चिलर का मेन एडवांटेज मतलब एप्लीकेशन एक कंफर्ट एप्लीकेशन तो है ही, स्पेस कूलिंग रिक्वायरमेंट हम जैसे बोलते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए। और उसके अलावा ये चिलर्स पॉपुलर है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कि जहाँ पे वेरियस प्रोसेस कूलिंग की चिल्ड वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपके वहाँ राजकोट में सिरामिक इंडस्ट्री है या प्लास्टिक इंडस्ट्री है, राइट, तो वहाँ पे एक्सट्रूजन मशीन्स है, वहाँ पे वो चिल्ड वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। उनकी जो जैकेट कूलिंग एप्लीकेशन रहती है उसके लिए भी चिल वाटर वॉल्यूम में चाहिए, तो नॉर्मल वाटर कूलर नहीं दे सकता, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल ग्रेड के ये चिलर्स यूज करते हैं। तो हम रेफ्रिजरेशन साइकिल से हम उसका वाटर कूल करेंगे और वाटर फर्दर प्रोसेस में जाएगा और प्रोसेस के लिए वो चिल वाटर फीड करेगा। तो दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट कि हमें चिलर क्यों चाहिए एंड कौन कौन से टाइप के चिलर। मेन फंडामेंटली 2 टाइप के चिलर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। एक है वेपर कंप्रेशन चिलर्स, तो हम ये सेशन में मेन हमारा फोकस वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही होगा। और दूसरा टाइप होता है वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर्स, जो वैम बोलते हैं हम जिसको, जो पहले यूज होता था, काफी गैस फायर्ड या स्टीम फायर्ड होता था, जबकि ये वेपर कंप्रेसर चिलर्स मेनली इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन होता है। पावर की जगह पे वो इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जबकि वैम चिलर जो वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर्स है वो अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि स्टीम भी यूज करते हैं हम, वेस्ट स्टीम जो होती है वो, उसके अलावा हम कॉल से स्टीम जनरेट करके उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट की क्या क्या कंपोनेंट है चिलर में, वेपर कंप्रेशन साइकिल में, तो हर एक रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट में ये 4 कंपोनेंट तो कॉमन ही है। पहला है कंडेंसर, दूसरा है इवापोरेटर, तीसरा है कंप्रेसर एंड चौथा है उसका एक्सपेंशन डिवाइस। कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है कि लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट आता है वेपर फॉर्म में, उसको वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है एंड उसको कंडेंसर में भेज रहा है वो। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर हमारे रेफ्रिजरेशन में भी होता है एंड अपने एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन में भी यूज होता ही है। उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है कि जो हीटेड जो गर्म रेफ्रिजरेंट आया है उसको वो कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा एंड वो फिर से उसको कूलर में फीड करने के लिए एक्सपेंशन डिवाइस में उसको पास ऑन करेगा। तो कंडेंसर का भी मेन वही यूज रहता है। उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस आता है, वो हाई प्रेशर, जैसे कंडेंसर में क्या होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, बट हमें टेम्परेचर के साथ साथ रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी कम करना है, उसके लिए हम थ्रॉटलिंग डिवाइस से बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, उसका यूज कर रहे हैं। ये सारे जो पार्ट्स में बता रहा हूँ अभी, कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस या इवापोरेटर, उसका हर एक का
अलग अलग टाइप हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या यूज होता है, मेन यूज क्या है उसका। उसके बाद आता है कूलर या इवेपोरेटर, जो हम स्प्लिट एसी यूज करते हैं उसका इवेपोरेटर कहाँ पे होता है, जो आईडीयू होता है इंडोर यूनिट को हम इवेपोरेटर बोल सकते हैं। सेम वे चिलर में एक ही स्किड पे सारी सिस्टम रहती है, जो प्लांट रूम में या टेरेस पे जब जहाँ पे भी हम चिलर को रखते हैं वहां पे ये चारों सिस्टम एक ही स्किड के अंदर आ जाती है। इट इज द ब्यूटी ऑफ चिलर। जबकि वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है, कंप्रेसर एंड कंडेंसर बाहर रहता है, उसको बोलते हैं ओडीयू, आउटडोर यूनिट। और इंडोर जो रहता है वो एक्सपेंशन वॉल रहता है, आईडीयू रहता है, जो कूलर होता है, राइट। जबकि चिलर में पूरा चीज एक प्लांट रूम में सिचुएटेड रहता है, ये चारों कंपोनेंट एक ही स्किड के ऊपर रहता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वीआरएफ और कन्वेंशनल एयर कंडीशनिंग वर्सेस चिलर एंड रेफ्रिजरेंट। चिलर में बेसिकली दो चीजें यूज होती है, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है रेफ्रिजरेंट। बट रेफ्रिजरेंट बार बार हमें फीड अप नहीं करना पड़ता, वो एक बार हमने जैसे भी कोई भी सिस्टम में डालते हैं वैसे एक बार फीड कर दिया वो रहेगा उसके सिस्टम के अंदर। बट दूसरा चीज होता है इलेक्ट्रिसिटी। दो चीजें इसमें हमें इनपुट देनी पड़ती है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेन कंपोनेंट्स है कंप्रेशन साइकिल के। ये हमारा जो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है, पीएच डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, उस पे हमने प्लॉट किया हुआ है कि कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेटर उसका क्या क्या कहाँ कहाँ पे वो पीएच डायग्राम पे हो रहा है, इम्बोज हो रहा है। ये जस्ट एक डायग्राम है, आप देख सकते हो उसका। उसके बाद यहाँ पे फिर से बड़े इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे हीट रिजेक्ट करते हैं, कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जो इवेपोरेटर होता है वहां पे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो आपकी वाटर में से हीट एब्जॉर्ब करेगा, खुद के अंदर लेगा एंड वाटर को ठंडा करेगा। टिपिकली हम 12 डिग्री का वाटर देते हैं कूलर में एंड हमें मिलता है 7 डिग्री का। जो डेल्टा टी होता है वो जनरली 5 से 6 डिग्री का मिलता है हमें। ये रेफ्रिजरेंट जो है वो फर्दर कंप्रेसर में जाएगा एंड कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ले जाएगा और उसके बाद वो रीयूज करने के लिए फिर से कंडेंसर में जाएगा। एंड कंडेंसर के भी टाइप्स रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में भी रिजेक्ट करता है अपनी हीट, जैसे स्प्लिट एसी में होता है वो एयर कूल टाइप सिस्टम हो गई। और दूसरा रहता है कूलिंग टावर, वो कंडेंसर वाटर एज अ मीडियम यूज करके उसकी हीट रिजेक्ट करता है। और फिर से आ गया ये मीटरिंग डिवाइस। ये एक पीएच डायग्राम पे हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल इम्पोज करके दिखाया हुआ है। ये है वाटर कूल्ड सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि ये 7 डिग्री का पानी देगा प्रोसेस या एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद ये ऊपर जो दिख रहा है आपको कूलिंग टावर, हीट रिजेक्शन टू द एटमोस्फियर, वो हम वाटर एज अ सेकेंडरी मीडियम ले रहे हैं ताकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हम जो होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर हाई रहता है रेफ्रिजरेंट का, उसको कम करने के लिए। तो ये एक वाटर कूल्ड सिस्टम का सिमेटिक है। उसके बाद ये यहाँ आप देख सकते हो एयर कूल्ड सिस्टम कि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी या वाटर क्वालिटी का इश्यूज रहते हैं वहाँ पे हम एयर कूल्ड चिलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो एयर में अपना एटमोस्फियर में हीट रिजेक्ट करेगा कंडेंसर। तो उसका ये टिपिकल डायग्राम बनाया हुआ है। हम सारे कंपोनेंट्स का डिटेल कवर करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट ये आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। तो पहला कंपोनेंट हम कवर करेंगे रेफ्रिजरेंट। जो मैंने बताया कि मेन फ्लूइड जो लिक्विड रहता है जो हीट रिजेक्ट एंड एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट करता है वो रेफ्रिजरेंट है। तो रेफ्रिजरेंट पहले हम नेचुरल टाइप रेफ्रिजरेंट जो होता था एमोनिया वगैरह वो भी यूज करते थे सिस्टम में, चिलर सिस्टम में, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह भी अभी ड्यू टू द प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज एनर्जी एफिशिएंसी में बेनिफिट हो रहा है, उसकी वजह सीएफसी एंड एचसीएफसी भी हम यूज कर रहे हैं। तो मेनली चिलर्स में R134A बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अभी। एंड स्क्रॉल चिलर हो आपके तो उसमें R22, R407 एंड R410A यूज होता है। कई बार अभी R123 भी यूज होता है, R514A भी यूज होता है। तो ये एक रेफ्रिजरेंट के टाइप्स है जो आपको चिलर्स में देखने मिलेंगे। कोई भी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका सेफ्टी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, सेफ्टी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कि वो रेफ्रिजरेंट सेफ है कि नहीं, कि फ्लेमेबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है वगैरह सेफ्टी के अंडर आता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी कि रेफ्रिजरेंट इजीली अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, एंड अवेलेबल है तो क्या रेट पे अवेलेबल है।
फिर ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल है, कई रेफ्रिजरेंट जो कार्बन एंड क्लोराइड का मिक्सर रहता है, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी हार्श इफेक्ट रहती है। तो गवर्नमेंट एंड सर्टेन ग्लोबल बॉडीज ये रेफ्रिजरेंट को अलाउ नहीं करते, तो हमें वो भी देखना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि ओडीपी एंड जीडब्ल्यूपी उसका कैसा है। उसके बाद टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इम्पैक्ट कि ज्यादा एनवायरनमेंट की वो क्या वर्स्ट इफेक्ट हो सकती है, ये मेन पैरामीटर्स है रेफ्रिजरेंट के सिलेक्शन में। तो अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ चिलर की मार्केट में या जो टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या चिलर्स के प्रकार है अवेलेबल। तो ये हमने फिर से पेज डायग्राम है और यहाँ पे चारों कंपोनेंट हमने प्लॉट किए हुए हैं। ये राइट हैंड साइड पे कंप्रेसर है, टॉप साइड पे कंडेंसर है, लेफ्ट साइड पे आपका मीटरिंग डिवाइस जिसे बोलते हैं एक्सपेंशन वॉल है, और नीचे है कूलर इवेपोरेटर। राइट, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे कंडेंसर से। तो कंडेंसर जैसे मैंने पहले बताया दो टाइप के रहते हैं, वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड टाइप में मेनली साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर यूज होता है जो आप देख सकते हो टॉप, और दूसरा होता है एयर कूल टाइप। एयर कूल टाइप में दो टाइप के अगेन रहते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर ट्यूब्स रहती है, एल्यूमिनियम फिन्स रहती है, या फिर एल्यूमिनियम का ही पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं MCHX, माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर जिसे बोलते हैं हम। ये माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर बेसिकली हम जो ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन अपनी कार है वहां पे हम आप जो कार्बोरेटर रहता है या रेडिएटर है वो MCHX टाइप रहता है। ये कंडेंसर के टाइप हो गए एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। मेनली कंप्रेसर के भी 4-5 टाइप है। पहला है स्क्रॉल टाइप, ये हर्मेटिकली सील्ड रहता है, जैसे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो टॉप पे, दैट इज अ स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर। दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग ज्यादा यूज होता था, उसके बाद स्क्रॉल टेक्नोलॉजी आई, एंड थर्ड इज स्क्रू टाइप। ये टेक्नोलॉजी भी predominantly यूज होती है फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। Fourth one is magnetic oil bearing centrifugal chillers, and fifth one is conventional centrifugal chillers और compressor। ये कंप्रेसर के 5 टाइप है। आपको चिलर्स कोई भी कैपेसिटी का होगा, ये 5 टाइप के कंप्रेसर में से ही एक टाइप का कंप्रेसर होता है और उसके बेस पे उसका नाम होता है। जैसे स्क्रॉल कंप्रेसर यूज हुआ तो उसको बोलते हैं स्क्रॉल चिलर। अगर वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज हुआ तो उसको बोलते हैं वाटर कूल्ड स्क्रॉल चिलर। अगर एयर कूल्ड यूज हुआ एंड कंप्रेसर का टाइप स्क्रू है तो उसको बोलते हैं एयर कूल्ड स्क्रू चिलर्स। तो कंडेंसर एंड कंप्रेसर के टाइप अकॉर्डिंगली चिलर का नोमेनक्लेचर होता है, उसका नामकरण होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर होता है रेसिप्रोकेटिंग में भी वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग चिलर्स हम यूज करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कूलर, जो इवेपोरेटर है, उसके भी मेन कंडेंसर के जैसे ही टाइप होता है, बट उसमें साइलेंट ट्यूब एंड PHE होता है। तो साइलेंट ट्यूब में अगेन 3 सब टाइप है, उसको बोलते हैं DX टाइप, जो ड्राई एक्सपांसन और डायरेक्ट एक्सपांसन हम बोलते हैं। दूसरा है फ्लडेड टाइप एंड फॉलिंग फिल्म टाइप। ये तीनों टाइप जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे, बट ये एक ओवरव्यू है कि हर एक कंपोनेंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। दूसरा है PHE, जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर रहता है, वो सिमिलर मटेरियल का ही रहता है और वो भी कूलर में यूज होता है एज अ हीट एक्सचेंजर। राइट, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ चिलर इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल एंड ओरिफिस। ओरिफिस जनरली अभी हम यूज नहीं कर रहे, मेनली स्क्रॉल चिलर में थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल यूज होता है, एंड अभी जो वेरिएबल एंड एफिशिएंट चिलर्स आ रहे हैं वहां पे स्क्रू चिलर और सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल हम यूज करते हैं। So now to give you one idea, you can pick any of the component कि आप कोई भी कंडेंसर में से एक कंपोनेंट उठाइए, कंप्रेसर में से एक कंपोनेंट उठाइए, कूलर में से एक कंपोनेंट एंड एक्सपेंशन वॉल में से, तो वो आपका एक चिलर बन जाएगा। ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो सारे कंपोनेंट में से एक एक उठा के आपका चिलर बन जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर पे। तो स्क्रॉल कंप्रेसर 8 टन से लेके 120 टन तक अवेलेबल है, बट सिंगल 120 टन का नहीं होता, उसके मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी स्क्रॉल कंप्रेसर की 25 टन ही रहती है। तो अगर मैं 100 टन का चिलर ले रहा हूँ स्क्रॉल चिलर, तो उसमें 25 के 4 आइडियली आने चाहिए कंप्रेसर।
ये 4 कंप्रेसर्स है और उसमें रेफ्रिजरेंट जो यूज होता है वो R22 बहुत ज्यादा यूज होता था। उसके बाद R410A भी यूज हो रहा है, अभी 407C भी यूज हो रहा है एंड R134A बहुत कम रेयरली हमें देखने को मिलेगा, बट हाँ यूज होता है स्क्रॉल कंप्रेसर में। और कैपेसिटी कंट्रोल टाइप जैसे मैंने बताया, स्क्रॉल कंप्रेसर में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व रहता है, तो वो आइदर ऑन होगा या ऑफ होगा, राइट। उसमें स्टेपलेस कैपेसिटी नहीं रहता कि आइदर 25 के 4 कंप्रेसर है, आपको पार्ट लोड पे चलाना है तो आइडियली 50 टन का लोड होगा आपका, तो 25 टन के 2 कंप्रेसर बंद कर देगा और 2 चालू रखेगा। तो दैट्स हाउ वी आर ऑपरेटिंग दिस स्क्रॉल चिलर एंड स्क्रॉल टेक्नोलॉजी। और उसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन पे डिवाइसेस है वो सारे मिक्स एंड मैच करके हम एक चिलर बना सकते हैं। लेट्स से वाटर कूल कंडेंसर लेके स्क्रॉल कंप्रेसर लेते हैं एंड साइलेंट ट्यूब टाइप कूलर लेते हैं, तो एक आपका वाटर कूल स्क्रॉल चिलर बन जाएगा। तो यू कैन पिक एनी ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम दिस स्लाइड एंड यू कैन मेक कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रॉल चिलर। दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। ये पिस्टन टाइप टेक्नोलॉजी थी जो काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करती थी एज कम्पेयर टू स्क्रॉल चिलर। तो ये अभी मोस्ट ऑफ कंपनीज ने एब्सोल्यूट कर दिया है, इसको ये बनाते नहीं है, बट ये भी 30 TR से 200 TR तक अवेलेबल रहता था एंड R22 R134A में यूज होता था। उसमें प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज नहीं होता था, साइलेंट ट्यूब टाइप ही यूज होता था एंड एयरकूल में MCHX यूज नहीं होता था। रेसिप्रोकेटिंग में सिर्फ कॉपर एल्यूमिनियम की जो कॉइल रहती थी वही यूज होती थी एंड ये एक्सपेंशन वाल हम उसमें मेनली पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल ही यूज करते थे। नाउ स्क्रू कंप्रेसर, अगर हम स्क्रू कंप्रेसर लेते हैं तो वहां पे कैपेसिटी रेंज आपका 50 TR से 500 TR तक मार्केट में अवेलेबल है और स्क्रू कंप्रेसर में मेनली R134A ही यूज होता है और अवेलेबल है सबके पास। और स्क्रू कंप्रेसर एंड स्क्रू चिलर टेक्नोलॉजी काफी मतलब पावर एफिशिएंट भी है, क्योंकि उसमें हम स्टेपलेस कैपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर वगैरह हम जो बोलते हैं वो यूज होता है स्क्रू में, और स्क्रू इज नॉट अ मैकेनिकल ओनली, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से हम एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 0.35 और 0.34 किलोवाट पर टन तक अचीव कर सकते हैं। तो लाइट कॉमर्शियल एप्लीकेशंस है वहां पे मेनली ये स्क्रू चिलर्स, हॉस्पिटल एप्लीकेशन है, बड़ी हॉस्पिटल है या फिर मॉल्स है, वहां पे स्क्रू चिलर्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, होटल्स में भी। एंड मैंने बताया 50 TR से 500 TR तक अवेलेबल है एंड एयर कूल, वाटर कूल, VFD, नॉन VFD दोनों टाइप के स्टार्टर के साथ भी वो अवेलेबल है, राइट। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक ऑयल फ्री चिलर। और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी समवॉट न्यू तो नहीं बोल सकते, 10 साल हो गए उसको, बट फिर भी एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी ये लेटेस्ट वन है और इसकी कैपेसिटी 90 TR से 400 टन तक है। नाउअडेज इट इज अवेलेबल अप टू 1000 टन आल्सो एंड मैग्नेटिक ऑयल फ्री में R134A रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है अभी एंड ये बाय डिफॉल्ट इन्वर्टर VFD ड्रिवन कंप्रेसर है। इसका पावर कंजप्शन एंड जो नॉइज लेवल है वो बहुत ही कम है। हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी मैं जस्ट डिस्कशन हो रहा है तो बता रहा हूँ कि इसका पावर कंजप्शन यू कैन गेट अप टू मिनिमम 0.9 किलोवाट पर टन। तो ये हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टिल डेट अवेलेबल है मार्केट में एंड एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट में अगर आप देखें तो वाटर कूल टाइप के कॉम्बिनेशन में ये ऑयल फ्री बियरिंग मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी मार्केटाइज है। एयर कूल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, वो भी नियर फ्यूचर में वी कैन एंटीसिपेट कि मार्केट में आ सकता है एंड इसमें प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कूलर के कंपेयर में नहीं यूज होता, साइलेंट ट्यूब टाइप ही यूज होता है एंड एक्सपेंशन वाल जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल ही यूज होता है, राइट। फिर आता है कन्वेंशनल सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स, जो बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल ग्रेड की या बड़ा मॉल है या मेगा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स आपको देखने मिलेंगे 250 टन ऑनवर्ड्स, 250 से 4000 टन तक भी ये चिलर्स अवेलेबल है एंड इसमें भी अगेन R134A बहुत ही प्रीडोमिनेंटली यूज होता है रेफ्रिजरेंट एंड कई बार R123 भी यूज होता था, बट नाउअडेज गवर्नमेंट हैज बैन ऑन दैट रेफ्रिजरेंट, तो 134A एंड 514A यूज होता है एंड इसमें भी वेरियस
स्टार्टर के टाइप्स अवेलेबल है, पीएफडी टाइप है, स्टार डेल्टा टाइप है, और ये सारे चिलर्स मैंने जो बताए वो आपको 415 वोल्टेज रेंज 3 फेज में अवेलेबल है। बट ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स इंडस्ट्रियल ग्रेड में भी यूज होता है और हायर कैपेसिटी भी होती है, तो ये आपको एसटी टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल होगा, एसटी पावर सप्लाई में। तो 3.3 केवी या 6.6 केवीए, 11 केवीए तक भी ये डायरेक्ट आप फीड कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक एडवांटेज है, बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहाँ पे ये एक मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है। एंड लेट से आपका लोड 3000 टन है, तो स्क्रू चिलर जैसे हमने देखा कि मैक्सिमम 500 टन तक अवेलेबल है, तो 500 टन के 6 चिलर लेना, उससे अच्छा 300 टन का लोड है तो 1500 के 2 या 1000 के 3 लेके आप कंपोनेंट्स कम कर सकते हो। So that's why that kind of centrifugal chillers for higher capacities demanded. इसमें भी आपने देखा कि वाटर कूल टाइप में ही अवेलेबल है सेंट्रीफ्यूगल चिलर। ये अवेलेबिलिटी का एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया है कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या कैपेसिटी में क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि स्क्रॉल चिलर अप टू 100 टीआर अवेलेबल है। उसके बाद आता है कांस्टेंट स्पीड स्क्रू चिलर, वो आपका 70 टीआर से 400 या 450 या 500 मैक्स टू मैक्स अवेलेबल रहता है। उसके बाद आता है वेरिएबल स्पीड स्क्रू चिलर, वो भी आपका 70 टीआर से 500 टन तक अवेलेबल रहता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल जो 250 टीआर से मैक्सिमम 4000 टन तक अवेलेबल है। एंड मैग्नेटिक बियरिंग चिलर जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी आपका 100 टीआर या 90 टीआर से 500 और 1000 टन तक अवेलेबल है। और एफिशिएंसी का भी मैंने आपको वाई एक्सिस पे आप अगर देखेंगे तो पार्ट लोड एफिशिएंसीज भी मैंने मेंशन किया हुआ है, किलोवाट पर टन में है कि आपकी एफिशिएंसीज एंड टनेज के हिसाब से आप ये चिलर का अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो हाईएस्ट आप देख सकते हो कि पावर कंजप्शन जो किलोवाट पर टन, हायर वैल्यू हायर द पावर कंजप्शन, जितना ये वैल्यू हायर होगा उतना आपका पावर बिल ज्यादा आएगा। स्क्रॉल टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो कि उसका पावर कंजप्शन ये वाटर कूल टाइप ही है, तो पावर कंजप्शन विल बी इन रेंज ऑफ 0.6 किलोवाट पर टन के आसपास होगा। फिर ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर कांस्टेंट स्पीड होगा तो उसका 0.5 किलोवाट पर टन से 0.45 किलोवाट पर टन होगा। उसके बाद ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्क्रू चिलर है, उसका आप वाई एक्सिस पे देखिए तो पावर कंजप्शन 0.4 किलोवाट पर टन से लेके 0.35 या 0.33 किलोवाट पर टन तक आ सकता है। और मैग्नेटिक जैसे मैंने बताया कि उसका पावर कंजप्शन जो है वो 0.3 किलोवाट पर टन मिनिमम जा सकता है। ये एक कंपैरिजन थी एफिशिएंसी वर्सेस कैपेसिटी अवेलेबल एंड वेरियस टेक्नोलॉजी। अब हम नए टॉपिक पे मूव करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड कंपोनेंट्स। तो कंप्रेसर में जैसे हमने देखा कि वेरियस टाइप के कंप्रेसर्स अवेलेबल है, बट उसमें भी जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर रहते हैं, डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट रहते हैं। तो ये क्या है कि पॉजिटिव क्या होता है कि वर्किंग फ्लूइड इज कन्फाइंड विद इन बाउंड्री। स्क्रॉल चिलर के केस में आप अगर स्क्रॉल कंप्रेसर किसी ने देखा होगा तो आपको आइडिया आएगा कि वो सिलिंड्रिकल शेप में रहता है एंड उसमें जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब रेफ्रिजरेंट, वो उसके लिमिट मतलब वो उसमें ही कन्फाइंड रहता है। जबकि डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट में सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो इम्पेलर होता है वो हाई आरपीएम पे रन होता है, वो डिस्प्लेसमेंट डायनेमिकली आगे भी जा सकता है और लिक्विड फ्लड बैक भी हो सकता है, तो उसको डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोलते हैं। स्क्रू चिलर वो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है। ये वर्किंग प्रिंसिपल अभी हम देखेंगे हर एक कंप्रेसर का। तो बिगिन विद स्क्रॉल चिलर। स्क्रॉल चिलर में जैसे मैंने बताया सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, मेन एक स्टेटर रहता है, एक रोटर रहता है। तो साइमल्टेनियसली रेफ्रिजरेंट जब कूलर से आता है तो उसका सक्शन भी होता है, पैरेलली उसका कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज भी होता है। जो आपको राइट हैंड साइड पे रिंग दिख रही है उसमें एक साइड से सक्शन करेगा, वो कंप्रेस भी करेगा एंड ऊपर डिस्चार्ज भी करेगा। ये स्क्रॉल का वर्किंग प्रिंसिपल है। दूसरा है स्क्रू कंप्रेसर का। स्क्रू अगेन दो टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है स्क्रू कंप्रेसर में भी। वो है ट्विन रोटर टाइप जिसमें मेल एंड फीमेल रोटर, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो कि लेफ्ट साइड से वो सक करेगा फिर कंप्रेस करेगा, रेड जो दिख रहा है आपको वो कंप्रेशन हो रहा है उसका, एंड राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है वो डिस्चार्ज आ रहा है जो कंडेंसर में जाएगा। ये लिक्विड मतलब रेफ्रिजरेंट का सक्शन, कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज दिखाया हुआ है। ये राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो मोनो रोटर स्क्रू टाइप है जिसमें एक मेन रोटर रहता है, आसपास दो गेट रोटर रहते हैं।
तो यहाँ पे भी आपको सक्शन एंड डिस्चार्ज एंड कंप्रेशन का एक एनिमेशन दिखाया हुआ है। ये कंप्रेसर्स रहता है, ये स्क्रू में तो 100 टीआर में एक ही कंप्रेसर रहता है, तो इसका कैपेसिटी लेट से यूजर का लोड 40 टन है या 50 टन है, हम वो लोड मैच करके कैसे चलाएंगे, तो उसका एक मैकेनिज्म है अनलोडिंग ऑफ स्क्रू कंप्रेसर। वो स्लाइड वॉल्व के यूज से हम कर सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो जाता है, वॉल्यूम जो जाता है रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस होने, वो हम वेरी कर सकते हैं। ये एक स्लाइड वॉल्व रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट। वो रेफ्रिजरेंट को उतना ही रेफ्रिजरेंट वो कंप्रेस होने के लिए जाने देगा, हमें प्रिसाइजली वो लोड मिलेगा कि भाई 40 टन का रिक्वायरमेंट है, 100 टन का चिलर लगाया हुआ है, तो 40 टन ही वो आपको लोड देगा। तो ये एक अनलोडिंग मैकेनिज्म था स्लाइड वॉल्व के हिसाब से। नाउ इट इज वीएफडी भी यूज होती है, आरपीएम जो होता है स्क्रू चिलर का, वो कंट्रोल करने के लिए, वहां पे आपको ज्यादा पावर सेव मिलेगा विद वीएफडी चिलर्स में। ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप टेक्नोलॉजी है जो 250 टीआर एंड अबव यूज होती है। इसमें इम्पेलर्स होते हैं एंड इनलेट गाइडल आईजीबी रहता है, बेसिकली गाइडल वैन्स रहती है, वो रेफ्रिजरेंट के सप्लाई को कंट्रोल करती है एंड ये हाई आरपीएम पे रन होता है, 15,000 से 18,000 आरपीएम। सेंट्रीफ्यूगल में भी अगेन दो टाइप रहते हैं, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी 500 एंड अबव, जैसे पावर कंजप्शन नीचे लाने के लिए सिंगल स्टेज एंड डबल स्टेज कंप्रेशन भी यूज करते हैं। तो ये एक डायग्राम था सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज का। यस, नाउ हीट एक्सचेंजर्स जो हमने देखा था इवेपोरेटर्स, तो उसके भी 3 टाइप है। पहला टाइप है डीएक्स टाइप, जो डायरेक्ट एक्सपांशन रहता है। तो पैलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में बेसिकली क्या रहता है, रेफ्रिजरेंट एंड वाटर। तो ये आपका डीएक्स टाइप जो कूलर है, उसमें क्या होगा कि कॉपर ट्यूब्स रहती है एंड सेल रहता है, वो आपका एमएस का रहता है। कॉपर ट्यूब्स के अंदर रेफ्रिजरेंट रहेगा एंड सेल के अंदर वाटर रहेगा। तो ये पहले यूज किया जाता था टेक्नोलॉजी डीएक्स टाइप। तो इसमें रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी कम यूज होती थी, बट एफिशिएंसी जो होती है उसकी वो पुअर थी। तो किलोवाट पर टन, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कंपैरिजन भी दिखाया हुआ है कि पावर कंजप्शन में क्या इम्पैक्ट आ रही है डीएक्स टाइप यूज करने के लिए। एंड दूसरा कि ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट है आपका, आपको सेल क्लीन करना होगा तो पूरा रेफ्रिजरेंट निकालना होगा, राइट। So difficult to clean on water side and possibility of circuiting कि आपका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इतना यूनिफॉर्मली हीट रिजेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड जो लिफ्ट है वो बढ़ जाती है। So that's why this technology is not that much well established. Again, second type है flooded type. यहाँ पे जो लिमिटेशन थी ट्यूब क्लीनिंग की और सेल क्लीनिंग की, वो मीट हो जाती है, क्योंकि इसमें ट्यूब के अंदर आपका वाटर रहता है एंड सेल के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट रहता है। हाँ, फ्लडेड टाइप जैसे नाम है वैसे रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी एज कम्पेयर टू डीएक्स ज्यादा है, बट आपका एफिशिएंसी जो है, क्योंकि यूनिफॉर्मली हीट रिजेक्शन होगा, आपका एफिशिएंसी जो है एज कम्पेयर टू डीएक्स इसमें बेटर मिलेगा। एंड हायर कैपेसिटी के जो चिलर्स रहते हैं 100 टीआर एंड अबव, हम फ्लडेड टाइप ये हीट एक्सचेंजर कूलर में यूज होते हैं। सेकंड इज फॉलिंग फिल्म, ये अगेन फ्लडेड का सब टाइप है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी और कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं। एफिशिएंसी भी बेटर मिल रही है नाउअडेज। ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स में ज्यादा यूज होता है एंड एडवाइजेबल। तो जैसे मैंने आगे बताया कि कंस्ट्रक्शन वाइज डीएक्स एंड फ्लडेड में क्या डिफरेंस है, कि रेफ्रिजरेंट ट्यूब में रहता है डीएक्स में, जबकि फ्लडेड में वो आपका सेल में रहता है। और पावर कंजप्शन वाइज अगर हम एयर चिलर, सेम एयर चिलर स्क्रू टाइप, अगर हम डीएक्स इवेपोरेटर के साथ लेते हैं तो उसका पावर कंजप्शन 1.15 टू 1.2 किलोवाट पर टन रहेगा। जबकि वही सेम आप फ्लडेड टाइप में लोगे एयर कूल्ड स्क्रू चिलर, तो पावर कंजप्शन में आप रिडक्शन देख रहे हो, बेनिफिट हो रहा है। उसका रीजन वही है कि रिजेक्शन जो है वो फ्लडेड टाइप में बेटर हो रहा है। यस, नाउ मूविंग टू द कंडेंसर। कंडेंसर के भी जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा कि 2 टाइप है, एक है कॉपर एल्यूमिनियम कॉइल के साथ, जो वाइडली यूज होता है, ट्रेडिशनली हम यही यूज करते हैं, पर इसमें कॉपर है अगेन, तो उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है, बट ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। एंड नाउ डेज कोस्टल एरिया में भी हम एयरकूल टाइप कंडेंसर यूज कर रहे हैं, कोस्टल या केमिकल इंडस्ट्री के आसपास का एरिया, यहाँ पे कोरोजन ज्यादा रहती है, तो
ये कॉपर एल्यूमिनियम कॉइल के ऊपर हम इपॉक्सी कोटिंग या ब्लाइगोल्ड कोटिंग या ब्लूफिन कोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये इंडिया के एनवायरमेंट एंड वेदर के हिसाब से ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है एंड इस पे कोटिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जबकि दूसरा है माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर। ये यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज जहाँ पे एम्बियंट हार्श कंडीशन नहीं है रहती, वहां पे ये ऑल एल्यूमिनियम कॉइल वाला यूज होता है। इसमें एक ही मटेरियल है, मेटल, जैसे हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ही है, तो गैल्वेनिक कोरोजन कम होगा इसका। बट अगेन मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ हार्श वेदर है एंड एम्बियंट कंडीशंस एंड केमिकल प्रोन है, तो पंक्चर होने के चांसेस ज्यादा है इसमें माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर में। बट इसका दूसरा एडवांटेज लाइटर इन वेट है, तो ओवरऑल आपके चिलर का वेट भी कम हो जाएगा। तो these all are the types of condenser coils which is used in air-cooled type of chillers. Now moving to the latest technology, हमने चारों कंपोनेंट का डिटेल में देखा, कंडेंसर, कूलर, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन वाइज। नाउ मूविंग टू द ऑयल फ्री टेक्नोलॉजी, जो हम बात करें कि लेटेस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली कंप्रेसर जो है वो आपका परमानेंट मैग्नेट की मोटर पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ही है ये। तो कंप्रेसर रन्स एट एलिवेटेड लेवल, जैसे बुलेट ट्रेन रहती है वहां पे कैसा होता है कि फ्रिक्शन नहीं रहता, उसकी वजह से उसकी स्पीड एंड एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है। सेम वे यहाँ पे भी कंप्रेसर के जो रोटर्स रहते हैं वो एलिवेटेड लेवल पे रन होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है उसकी वजह से। तो इसमें फ्रिक्शन मतलब आइडियली कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, उसकी वजह से लुब्रिकेशन जो हम करते हैं नॉर्मल कंप्रेसर में, स्क्रॉल टाइप में, स्क्रू टाइप में एंड सेंट्रीफ्यूगल कन्वेंशनल में, वो लुब्रिकेशन सिस्टम की हमें जरूरत नहीं रहती। तो उसकी वजह से इसका एफिशिएंसी भी बेटर हो रहा है एंड एफिशिएंसी डिग्रेडेशन होता है। ऑयल हम यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर में जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होकर, तो उसकी वजह से हीट रिजेक्शन में भी वो हर्डल क्रिएट करता है। मेन एडवांटेज इसका यही है कि ऑयल का एक ड्रॉप भी अवेलेबल नहीं है ये कंप्रेसर में। तो आज के दिन में जो चिलर लगा है वो 10 साल के बाद भी ऑलमोस्ट सेम एफिशिएंसी लेवल्स आपको मीट करेगा, डिलीवर करेगा। दूसरा, इसमें इनबिल्ट वीएफडी रहती है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है वो इनबिल्ट रहती है, तो उसकी वजह से आपका जो स्टार्टिंग करंट होता है, इंडस करंट जिसे हम बोलते हैं, वो मिनिमम रहेगा, एज वेल एज स्पीड आप प्रिसाइजली कंट्रोल कर पाओगे। तो पार्ट लोड पे बेटर एफिशिएंसी भी मिल सकेगी आप ऑयल फ्री कंप्रेसर में। ये एक टिपिकल डायग्राम है ऑयल फ्री सिस्टम वर्सेस अवर ट्रेडिशनल ऑयल मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मल स्क्रू चिलर या स्क्रॉल चिलर होते हैं तो आप देख सकते हो कि ऑयल सेपरेटर का यूज होता है, ऑयल हीटर का यूज होता है, ऑयल कूलर का यूज होता है, ऑयल पंप होता है, ऑयल सेपरेटर होता है। जबकि राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ऑयल फ्री सिस्टम, उसमें कंप्रेसर है और कोई ऑयल का सेपरेशन का या कलेक्शन का या पंप का कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि ऑयल ही नहीं है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता। So that way this structure of chiller is very much clear and neat and clean, and दूसरा efficiency में भी आपको better advantage मिलेगा। ये ग्लोबल जो फॉरम है एसरे, अमेरिकन सोसाइटी फॉर रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स, उन्होंने भी ऑयल की जो इम्पैक्ट है कि चिलर्स पे क्या आती है, तो ये ग्राफ उन्होंने डाला हुआ है कि अमाउंट ऑफ ऑयल इन सर्कुलेशन परसेंटेज में, एंड वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो एफिशिएंसी लॉस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका लॉसेस ऑन एन एवरेज 8% रहता है ऑयल वाले कंप्रेसर में। तो ये बेनिफिट आपको कन्वेंशनल चिलर में नहीं मिलेगा, जो ऑयल फ्री मैग्नेटिक चिलर्स में मिल रहा है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो अदर बेनिफिट्स जैसे मैंने बताया कि इसमें बाय डिफॉल्ट वीएफडी यूज होती है, तो आपका स्टार्टिंग करंट कम होगा, प्रिसाइजली टेम्परेचर कंट्रोल होगा या लोडिंग अनलोडिंग होगा, सॉफ्ट स्टार्ट जिसे हम बोलते हैं। यस, एफिशिएंसी, ये सारी टेक्नोलॉजी का मैंने एक एफिशिएंसी वाइज डायग्राम प्लॉट किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो 100% लोड से लेके 0% लोड तक, वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो किलोवाट पर टन, राइट। तो ये फ्लडेड टाइप है, उसका एफिशिएंसी आप ये कलर कोड के हिसाब से देख सकते हो। आइडियली जब जब चिलर पार्ट लोड पे आता है 100% टू 50% पे, तो सबसे बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी आपको मिल रही है ऑयल फ्री में, और उसके बाद उससे बेटर मिल रही है इन्वर्टर जो वीएफडी टाइप स्क्रू चिलर है उसमें। फिर उससे थोड़ा पुअर है डीएक्स टाइप जो कांस्टेंट स्पीड आपका स्क्रू चिलर रहता है उसकी, एंड फिर फ्लडेड टाइप स्क्रू चिलर।
So in nutshell, magnetic bearing compressors are intelligent, quite smart, and energy efficient. No friction, no oil, smooth starting, quick starting, zero indoors. ये उसका था. Now moving to the third topic of this session, that is chiller efficiency. कि आपको अगर कोई चिलर कोई कस्टमर को सजेस्ट करना है तो हाउ यू विल सजेस्ट कि इतने सारे टाइप के चिलर्स अवेलेबल है, तो उसके लिए हमने एफिशिएंसी डिफाइन करनी पड़ती है. तो उसके लिए मेन कोई भी सिस्टम होता है उसका फुल लोड एफिशिएंसी हम देखते हैं, पार्ट लोड एफिशिएंसी हम देखते हैं, उसका मेन स्टार्टिंग करंट वगैरह हम देखते हैं एंड अवेलेबिलिटी देखते हैं. तो नाउ मूविंग टू द चिलर एफिशिएंसी क्राइटेरिया. सीओपी जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी जैसे मैंने बताया मैनी वेरिएबल पे डिपेंड करती है. एक है चेंजिंग लोड, उनका लोड कांस्टेंट है या वेरिएबल है. दूसरा चेंजिंग एम्बिएंट एंड वाटर टेम्परेचर, एयर कूल होगा तो वो एम्बिएंट पे ज्यादा डिपेंड करेगा चिलर, एंड वाटर कूल होगा तो वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, वाटर इनलेट टेम्परेचर आप दे रहे हो कूलिंग टावर के थ्रू, उस पर डिपेंड करेगा. चिलर के कॉन्फ़िगरेशन कि भाई आपने स्क्रॉल टाइप लिया हुआ है, स्क्रू टाइप लिया हुआ है, ऑयल फ्री मैग्नेटिक है या सेंट्रीफ्यूगल है. लोडिंग अनलोडिंग सीक्वेंस कि अगर एक प्लांट रूम में 3 से 4 चिलर्स है तो उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग सीक्वेंस कैसा है. नाउअडेज चिलर प्लांट मैनेजर जो यूज होता है चिलर्स को मॉनिटर एंड सीक्वेंसिंग करने के लिए भी हम एड ऑन लगा सकते हैं इस पे. एंड प्लांट मेंटेनेंस ओवरऑल, अगर वाटर कूल है तो कूलिंग टावर का मेंटेनेंस, पंप वगैरह, तो ये सब भी एफिशिएंसी डिस्कशन हम करते हैं तो उसमें ये सारे पैरामीटर्स भी कवर होने चाहिए. तो नाउ गोइंग टू द चिलर एफिशिएंसी वर्सेस प्लांट एफिशिएंसी. चिलर की अगर आप एफिशिएंसी देखें तो 3 वेरिएबल मेनली यूज होते हैं. एक होता है सीओपी, तो उसका फुल लोड एफिशिएंसी होता है, किलोवाट पर टन में भी हम मेजर कर सकते हैं या किलोवाट बाय किलोवाट पे भी मेजर कर सकते हैं. दूसरा है पार्ट लोड पे. पार्ट लोड पे हम आईपीएलवी भी यूज करते हैं, एनपीएलवी भी यूज करते हैं. हम देखेंगे कि व्हाट इज आईपीएलवी एंड एनपीएलवी. और तीसरा होता है सिस्टम पार्ट लोड वैल्यू. सिस्टम पार्ट लोड वैल्यू मींस चिलर और उसका एंसिलरी हम कूलिंग टावर ऑल पुट टुगेदर कि उसका पावर कंजप्शन क्या आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम पार्ट लोड वैल्यू. व्हाट इज एफिशिएंसी बेसिकली. तो एफिशिएंसी आपको डिफाइन करनी है ऑप्टिमम डिजाइन प्लस बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लस इफेक्टिव ऑपरेशन. आपने बेस्ड टेक्नोलॉजी वगैरह तो ले लिया बट ऑपरेशन से आपका प्रॉपर नहीं है कि कांस्टेंट लोड का एप्लीकेशन था और आपने ले लिया ऑयल फ्री चिलर, तो ये आपका कोई पर्पस क्लियर नहीं करेगा. तो बेस्ड एफिशिएंसी इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट हमें सजेस्ट करते हैं. ऑप्टिमम डिजाइन लेते हैं, बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं, इफेक्टिव ऑपरेशन उसको करवाते हैं, रन करवाते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट. या चिलर सिलेक्शन, कभी भी आपको कोई चिलर सिलेक्ट करना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको ओईएम को देने पड़ेंगे या कस्टमर को देने पड़ेंगे. दैट इज फर्स्ट इज कैपेसिटी, कि क्या कैपेसिटी का चिलर चाहिए, हीट लोड के हिसाब से आपकी कैपेसिटी निकलेगी. फील्ड वाटर का इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर आपको क्या चाहिए, सेट पॉइंट टेम्परेचर जो बोलते हैं. फिर होता है फॉलिंग फैक्टर, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है फॉलिंग फैक्टर. फिर वाटर कूल्ड है तो कंडेंसर का इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है. फ्लो रेट भी इंपॉर्टेंट है जो आपके पंप्स डिजाइन करने के लिए. एंड एयर कूल्ड चिलर है तो आपका अगेन एम्बिएंट टेम्परेचर कि क्या वो वहाँ का ड्राइबल टेम्परेचर कितना मैक्सिमम जा सकता है या मिनिमम जा सकता है, तो वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है चिलर सिलेक्शन में. तो जैसे मैंने बताया फॉलिंग फैक्टर चिलर के केस में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हम वाटर यूज करते हैं. फॉलिंग फैक्टर क्या होता है कि एक हीट ट्रांसफर में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ट्यूब के अंदर. वाटर क्वालिटी हर जगह पे अच्छी नहीं होती तो स्केल फॉर्म हो जाता है ट्यूब के अंदर. तो वो स्केल धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लेयर ट्यूब के अंदर बन जाएगा और वो लेयर की वजह से आपका जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, वाटर आपके रेफ्रिजरेंट के साथ जो हीट रिजेक्ट कर रहा है उसमें डिफिकल्टीज आएगी. तो उसको बोलते हैं फॉलिंग फैक्टर. हायर द फॉलिंग हायर द पावर कंजप्शन, और पावर कंजप्शन ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा. और ये उसका यूनिट है फीट आवर डिग्री फ़ारेनहाइट बाय बीटीयू. ये ब्रिटिश यूनिट है एमकेएस में और एसआई में, ये अलग अलग. जनरली हम 0.001 एंड 0.0025 ब्रिटिश यूनिट में लेते हैं, एफपीएस में लेते हैं. जैसे मैंने बोला हायर द फॉलिंग हायर द रेजिस्टेंस टू द हीट ट्रांसफर एंड हायर पावर कंजप्शन. हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वाटर क्वालिटी हम जो चिलर को फीड कर रहे हैं वो प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया बाय द मैन्युफैक्चरर. ये इम्पैक्ट है.
कि कूलर और कंडेंसर दोनों वाटर कूल्ड होंगे तो आपका फॉलिंग फैक्टर का इम्पैक्ट क्या आता है कि आपकी कैपेसिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। लेट्स से 100 टन का चिलर है और वाटर क्वालिटी आपने अच्छी नहीं दी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम टनेज डिलीवर करेगा और हायर पावर कंजप्शन वो कंज्यूम करेगा। तो ये एक कंपैरिजन है कि आइडियली 111 है, फिर जैसे ही फॉलिंग बढ़ता है वैसे आपका कैपेसिटी फैक्टर ये मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स से 100 टन का चिलर है तो वो 99 टन ही डिलीवर करेगा और ये 0.0005 का आपका फॉलिंग हो गया तो वो क्या करेगा 97 टन ही डिलीवर करेगा। और सेम वे पावर कंजप्शन आप देख रहे हो कंडेंसर में कि पावर कंजप्शन लेट से 10 एमपी 100 कंज्यूम कर रहा था तो उसकी जगह पे 102 किलोवाट कंज्यूम करेगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ऑन चिलर पावर एज वेल एज कैपेसिटी। ये आइडियल वाटर क्वालिटी है, ये हर एक ओईएम अपने चिलर्स के साथ देते हैं कि कूलिंग टावर में कौन सी वाटर क्वालिटी का वाटर फीड करना चाहिए। मेकअप वाटर जो हम कूलिंग टावर में मेकअप करते हैं वो वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए एंड जो कूलर में हम फीड करते हैं कूलर में जो फीड किया है वो कंफर्ट एप्लीकेशन होगी तो बार बार उसको टॉप अप नहीं करना पड़ेगा, वो क्लोज लूप है। जबकि कंडेंसर साइड है वो आपका ओपन लूप है तो उसमें अलग अलग लॉसेस रहते हैं वाटर के, तो उसके लिए हमें मेकअप वाटर की रिकमेंड रहती है। नाउ चिलर्स लाइक एयर कंडीशनर हमने देखे तो वहां पे स्टार लेबलिंग होता है, वैसे ही चिलर्स में पहले AHRI सर्टिफिकेशन रहता था। AHRI इज अमेरिकन हीटिंग रेफ्रिजरेशन इंस्टीट्यूट, तो चिलर्स के पावर कंजप्शन की फिगर्स हम देते हैं उसको सर्टिफाई करती है। तो स्क्रू चिलर्स मेनली ऑयल फ्री चिलर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स आर AHRI सर्टिफाइड। तो ये उसका स्कोप लिखा हुआ है कि वाटर कूल्ड चिलर में क्या क्या स्कोप रहता है सर्टिफिकेशन का। सारे चिलर्स जो है वाटर कूल्ड में ब्राइन चिलर्स AHRI सर्टिफाई नहीं होते, बट आपके जो नॉर्मल स्क्रू चिलर्स 100 TR अबव के रहते हैं वो सारे AHRI सर्टिफाइड रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एश्योरेंस मिलेगा थर्ड पार्टी से कि नहीं जो पावर कंजप्शन OEM ने बोला है वही मुझे मिल रहा है, राइट। तो ये ग्लोबल बॉडी है AHRI जो चिलर्स को सर्टिफाई करती है। ये वेबसाइट एड्रेस भी है, वहां पे जाके भी आप मैन्युअली चेक कर सकते हो कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरर AHRI सर्टिफाइड चिलर्स प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। दूसरा है यूरोवेंट जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यूज होता है, उनका भी अलग एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो वो भी चिलर्स एंड हीट पंप, वहां पे हीट पंप भी ज्यादा यूज होता है एंड ब्राइन चिलर्स को वो सर्टिफाई करता है। yes. उसका बट IPL भी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो ARI कंडीशन जो यहाँ पे मेंशन है, ARI कंडीशन मतलब HRI ने डिफाइन किया है कि भाई 100 टन का चिलर है तो वो कौन सी कंडीशन पे 100 देना चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन पे 100 टन डिलीवर होगा तो उसको हम बोल सकते हैं 100 टन का चिलर, ये ARI कंडीशन है। और सेम वे एयरकूल के लिए हमें कूलिंग टावर एंटरिंग लिविंग नहीं होगा, उसके लिए एम्बिएंट पकड़ना पड़ेगा, तो दैट इज 95 फ़ारेनहीट, दैट मींस 35 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग टर्म्स हम यूज करते हैं, वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या है। फुल लोड पावर कंजप्शन, इट इज अ रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन टू द लोड, कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है एंड लोड क्या है, तो उसका रेशियो जो बनता है उसको बोलते हैं फुल लोड किलोवाट पर टन। 100% पे कितना पावर कंज्यूम करेगा वो। COP इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो किलोवाट में किलोवाट बाय किलोवाट में हम डिराइव कर सकते हैं। हायर COP मींस लोअर किलोवाट पर टन, तो हायर COP, जितना COP वैल्यू ज्यादा होगा उतना आपका सिस्टम बेटर है क्योंकि उसका किलोवाट पर टन कम है, वाइस वर्सा। यस, ये एसरे ने वेटिंग आवर्स दिए हुए है कि हम अगर पार्ट लोड पे चलाना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया हुआ है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने में लग रहा है बट है एकदम सिंपल। ये क्या कहना चाहता है कि 100% पे आपका चिलर चलेगा वो 1% ऑफ द टाइम चलेगा, 75% पे जो चलेगा वो 42% टाइम चलेगा, 50% पे जो चलेगा वो 45% टाइम चलेगा एंड 25% पे चिलर चलेगा वो 12% ऑफ द टाइम। और उसका वेटेड एवरेज पावर कंजप्शन निकाल के ये फॉर्मूला में रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल के हम उसका ये IPLV वैल्यू डिराइव कर सकते हैं।
कि लेट से आपका चिलर 100 दिन चलने वाला है, तो 100 दिन में से वो 1%, मतलब एक दिन वो फुल लोड पे चलेगा। 42 दिन वो 75% पे चलेगा। 45 दिन वो आपका 50% पे चलेगा। 12 दिन वो आपका 25, वो वेटेड एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फंडा है उसका आईपीएलवी का, और उसमें आपका इनलेट आउटलेट का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो एआरआई कंडीशन हमने आगे देखी, वो अभी एआरआई कंडीशन हर एक जगह तो प्रिवेल नहीं करेगी, तो उसके लिए हमने निकाला है एनपीएलवी। एनपीएलवी मींस नॉन स्टैंडर्ड पार्ट लोड वैल्यू। जैसे हम कच्छ, गुजरात में कच्छ से लेके वापी तक टेम्परेचर में भी वेरिएंस होता है। तो कई बार कस्टमर बोलता है कि हमारे यहाँ की जो एम्बिएंट कंडीशन होगी उसके हिसाब से मुझे रियल टाइम क्या पावर कंज्यूम होगा वो फिगर चाहिए। तो उसके लिए हम एनपीएलवी वैल्यू यूज करते हैं। उसमें टोटली कस्टमाइज है, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, जो वेटेड एवरेज है वो सेम रहेगी, बट जो डिजाइन टेम्परेचर है वो हम कंसल्टेंट ने या जो भी डिजाइन पैरामीटर्स जिसने डिफाइन करे है एम्बिएंट के हिसाब से, वो इंसर्ट करेंगे। एनपीएलवी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये एक कंपैरिजन है कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आईपीएलवी में मैंने जैसे बताया कि आपका टेम्परेचर एंड जो फ्लो रेट है एंड फॉलिंग फैक्टर है वो स्पेसिफाइड है, बट एनपीएलवी में यूजर का लोकेशन के हिसाब से जो भी टेम्परेचर या उसके लोड के हिसाब से जो भी उसको चाहिए, किसी को 7 डिग्री चिल वाटर नहीं चाहिए, किसी को 5 डिग्री चाहिए, तो वो हम यूजर डिफाइंड और यूजर स्पेसिफाइड पैरामीटर्स डाल के उसका रियल टाइम पावर कंजप्शन क्या आएगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सारा सॉफ्टवेयर हर एक चिलर मैन्युफैक्चरर के पास उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें ये सब वैल्यूज डालते हैं, तो उसका आउटपुट मिलता है उसको। कोई मैन्युअली एक्सरसाइज नहीं रही अभी, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। कई बार कंडेंसर का जो हम यहाँ पे आपने देखा कि ये रिड्यूसिंग है कि 100% पे 85 फ़ारेनहीट था, 75% पे हमने कम कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग कंडेंसर वाटर एंट्रिंग टेम्परेचर बोलते हैं। कई बार कई कंडीशन पे कांस्टेंट रहता है कंडेंसर का टेम्परेचर, तो वहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बट ओनली थिंग आपका डिजाइन एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। 32 है तो वो 100% भी 32, 50% पे भी एंड 25% पे भी 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये पार्ट लोड वैल्यू बोलते हैं उसको। ये हमने एक 500 टीआर का वाटर कूल सेंट्रीफ्यूगल चिलर विद वीएफडी लिया हुआ है, एंड जो आगे हमने 3 क्राइटेरिया देखे, आईपीएलवी, एनपीएलवी एंड पार्ट लोड वैल्यू, तो उसके हिसाब से लोड यहाँ पे लोड है आपका 500, 375, 250 एंड 125। ये 100%, 75, 50 एंड 25% है। तो रिस्पेक्टिव फिगर्स क्या आएगी? आईपीएलवी जो राइट टॉप राइट पे आपको दिख रहा है आईपीएलवी वैल्यू, ये किलोवाट पर टन में कि 500 टन का चिलर फुल लोड पे चलेगा तो उसका पावर कंजप्शन होगा 0.54। ये एक एग्जांपल है, 0.549 किलोवाट पर टन। जब वो 75% पे चलेगा तो उसका पावर कंजप्शन आएगा 0.4 किलोवाट पर टन। तो ये वैल्यूज आप देख सकते हो कि ये 0.34 जो बॉटम में दिख रही है आपको, वो उसकी आईपीएलवी वैल्यू है। ये चारों पॉइंट पे वेटेड एवरेज निकाल के 0.348 आता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आईपीएलवी 0.34 है। सेम वे कोई पूछे कि इसका एनपीएलवी कितना है, तो वो है 0.357 किलोवाट पर टन, राइट। तो ये कंपैरिजन था एक 500 टीआर के चिलर का। यस, नाउ मूविंग, ये तो हमने सिर्फ देखा चिलर का ही। अब हमें चिलर के साथ साथ कूलिंग टावर भी लेना है, पंप भी लेना है। उसको बोलते हैं सिस्टम पार्ट लोड वैल्यू, कि बिल्डिंग का लोड प्रोफाइल क्या है, कि 12 घंटे चलने वाला है बिल्डिंग, 18 घंटे चलने वाला है, 24/7 एप्लीकेशन भी रहती है कई कई बार, और वेदर भी हर एक सिटी का अलग अलग रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग लोड प्रोफाइल हम चिलर इक्विपमेंट का सिस्टम पार्ट लोड वैल्यू निकालते हैं, एंड दैट इज द रियलिस्टिक वे कि ये हमें एनुअली इतना पावर, तो कस्टमर को अगर फिगर चाहिए कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कितना आएगा, तो हम ये सब तीनों कंपोनेंट्स मिला के उनका एनुअल पावर कंजप्शन निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज स्टार लेबलिंग। हम सब जानते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेटर है, घर पे यूज होता है, एयर कंडीशनर है, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, वहां पे हमने स्टार लेबलिंग लिखा हुआ है कि स्टार लेबल होता है 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो हाईएस्ट द स्टार, हाईएस्ट द पावर बेनिफिट।
तो सेम वे गवर्नमेंट ने भी अभी इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान के तहत चिलर्स में स्टार लेबलिंग रेगुलेशंस डाले हुए हैं। तो आइडियली 1 जनवरी 2021 से मैंडेटरी होने वाले थे, बट अभी ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन ये डेडलाइन आपकी 2022 तक चली गई है मैंडेटरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे चिलर्स जो इम्पोर्टेड है एंड लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, बोथ वाटरकूल and air-cooled type chillers will be mandatorily comply the star label, and registration process भी already 2 साल पहले ही start हो गई है। कई कंपनीज ने already अपने चिलर्स स्टार लेबल करवा दिए हैं, तो अभी ये वॉलेंटरी फेज चल रहा है। तो इन फ्यूचर वी कैन सी कि ये IPLV NPLV ये सब जार्गन जो हम अभी देखे वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन मैन जो परचेजर है, जो परचेज कर रहा है, उसको ये सब देख के इवोल्यूट करना, वो सब मगजमारी में जाना, उससे अच्छा 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, वो सिंपल एक ही वर्ड में उसको आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन सा चिलर कितना एफिशिएंट है। ये IPLV NPLV ये सब इन कमिंग फ्यूचर ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा। और हमने देखा कि ARI कंडीशन थी 35 डिग्री एम्बिएंट, बट इंडियन एम्बिएंट अगर आप देखें तो यूरोपियन से काफी अलग है अमेरिकन कंडीशन। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 39 डिग्री सेल्सियस गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ इंडिया का एम्बिएंट कंडीशन 35 की जगह पे 39 पकड़ना है। तो उसके हिसाब से उन्होंने ISER NPLV की जगह पे इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो भी बनाया है, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यस, और प्रोजेक्ट विल इंसिस्ट फॉर हायर स्टार्ट। जैसे ग्रीन बिल्डिंग में जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे भी हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट लेंगे, क्योंकि चिलर कोई भी बिल्डिंग में नाउअडेज क्लोज टू 40% पावर कंजप्शन जो होता है वो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट ही कंज्यूम करता है। एंड दिस विल बी द लोगो ऑफ स्टार लेबलिंग। ISER वैल्यू जो मैंने बताया वो यूज होगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे वैलिडिटी ये भी हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है उसका स्टार लेबलिंग का। हाँ, जो मैं आपको आगे बता रहा था कि AHRI की कंडीशन जो है वो ग्लोबल है, कि उन्होंने पूरे दुनिया की एवरेज निकाल के उनका पैरामीटर सेट किया हुआ है। बट फॉर इंडियन एम्बिएंट कंडीशन इट इज ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी हार्श वेदर कंडीशन, particularly in south and western region of India. तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि ISER जो आपको दिख रहा है, इंडियन रीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, उसमें बोला था कि 100% पे 1% टाइम चलता है AHRI में। इंडियन ISER विल कंसिडर 6%, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा ओवर डिजाइन वगैरह भी नहीं रहता एंड एम्बिएंट भी कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। हमने 6% वेटेज दे दिया उसको। 75% पे जो चलता है वो AHRI के हिसाब से 42 था, वो हमने 48 बढ़ा दिया हुआ है। एंड मिनिमम 25% पे उनका 12 था, वो हमने कम कर दिया है, क्योंकि ज्यादा 100 टन का चिलर होगा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 75 या 100% पे ही चलेगा। तो दैट्स हाउ ISER में जो वेटेज है पार्ट लोड एफिशिएंसी की वो भी चेंज किए हुए है। एंड जो एम्बिएंट कंडीशन मैंने बताया कि एयरकूल में AHRI आपका 35 ले रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये 39 होना चाहिए टू सूट द मोड। तो ISER will give you a real time view of any air conditioning equipment और power consumption। तो आप जैसे देख सकते हो कि 100% पे 39 लिया हुआ है, 75% पे उन्होंने 32 लिया हुआ है, 50% पे 26 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, एंड मिनिमम 20 डिग्री C लिया हुआ है। जबकि AHRI में ग्लोबल एवरेज उन्होंने 12.7 लिया हुआ था, जो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि एफिशिएंसी क्या है चिलर की। तो चिलर की एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, IPLV जो हमने देखा वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड ISER भी इंपॉर्टेंट है। बट लेट्स से 500 टन का लोड है तो हम सिंगल चिलर भी दे सकते हैं उसको, फिर 2 या 3 चिलर का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। तो ट्राई टू मैच द स्पेसिफिकेशन, मतलब उनका लोड प्रोफाइल क्या है, एम्बिएंट कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हमें यूजर को या कोई भी कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए कि क्या कैपेसिटी का चिलर लेना चाहिए। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। કેમ છો હાર્દિક સાહેબ? મજામાં સાહેબ? બસ મજામાં યોગેન સર। સાહેબ એક કૌશિક માનસતા કરીને છે અમારા રાજકોટમાં, એમનો એક ક્વેશ્ચન છે કે એર કુલ બેટર રહે કે વોટર કુલ્ડ?
ચિલરમાં તમે જોવા જાવ ને સર કે એરકુલ બેટર છે કે વોટર કુલ, એમાં મેં બતાવ્યું ને કે બહુ બધા પેરામીટર છે કે તમારો એમ્બિયન્ટ કન્ડિશન કેવી છે, જો એની સિમ્પ્લિફાઈ વોટર કુલ અને એરકુલમાં ઓલવેઝ વોટર કુલ એફિશિયન્ટ સિસ્ટમ તો રહેવાની. યુઝરના ત્યાં પાણીની અવેલેબિલિટીનો ઇસ્યુ હોય, ક્વોલિટીનો ઇસ્યુ હોય, તો એ ટાઈમે એરકુલ બી લોકો યુઝ કરતા થઈ ગયા છે નાઉ-અ-ડેઝ. બટ એફિશિયન્સી વાઇઝ વોટર કુલ ઇઝ બેસ્ટ, દેટ ઇઝ નો ડાઉટ. ઓકે, સેકન્ડ વન કેન્ડિડેટનું ક્વેશ્ચન છે રવિ સોની કરીને છે. એમને પૂછ્યું છે કે આઈડિયલ એસપીએલવી ઇન કેસ ઓફ ઇન્વર્ટર સ્ક્રૂ ચિલર કઈ રીતની હોઈ શકે? હા, આઈડિયલ એસપીએલવી તમે જોવા જાવ ને, એસપીએલવી મીન્સ આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એસપીએલવી એટલે સિસ્ટમ પાર્ટ લોડ વેલ્યુ. એમાં તમારું કુલિંગ ટાવર આવી ગયું, તમારું પંપ આવી ગયું અને તમારું ચિલર આવી ગયું, રાઈટ? ઇન્વર્ટર સ્ક્રૂ ચિલર ઇઝ ધ લોએસ્ટ પાવર કન્ઝપ્શન એનું પોતાનું છે. તો નાઉ-અ-ડેઝ 0.35 કિલોવોટ પર ટન ટેન્ટેટિવલી એનો ઇન્વર્ટર સ્ક્રૂ નો હોય છે. પ્લસ તમે 0.2 તમે કુલિંગ ટાવર અને પંપ અને એએચયુ આ ત્રણેયના થઈને મૂકો, તમારું પાવર કન્ઝપ્શન એસપીએલવી ઇન્વર્ટરના કેસમાં 0.6 કિલોવોટ પર ટન થી વધારે ના જાય વોટર કુલમાં. ઓકે, હું જસ્ટ ટાઈપ કરીને રવિભાઈને પૂછી જોઉં કે ક્લિયર થઈ ગયું કે નહીં. એક સોલંકી વિપુલનો એક પ્રશ્ન છે. ગ્લાયકોલની ગ્રેવિટી -0 ટેમ્પરેચર. હા, ગ્લાયકોલ બેઝિકલી આપણે કેમ, હા વિપુલભાઈ તમારો આન્સર જો કરું, ગ્લાયકોલ ચિલર્સ જે હોય છે એ બ્રાઇન એપ્લિકેશન, જે ધારો કે 7 ડિગ્રીની જગ્યાએ કોઈ યુઝરને પ્રોસેસ માટે બ્રાઇન ચિલર્સ જોઈએ કે -5 જોઈએ કે -10 જોઈએ, ત્યારે આપણે ગ્લાયકોલ એડ કરતા હોઈએ છીએ વોટરની અંદર. ત્યારે એનો જે ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે નીચે લઈ જવા માટે ગ્લાયકોલ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ આપણે. નોર્મલ ચિલર્સમાં આપણે નોર્મલ રો વોટર જ યુઝ થતું હોય છે. એમનો પ્રશ્ન કે ગ્રેવિટી કેટલી હોવી જોઈએ? એ તો ગ્લાયકોલ ના પર્સન્ટેજ કેટલા છે, કોન્સન્ટ્રેશન 25% છે, 20% છે, તો એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અને ગ્લાયકોલના બી 2-3 ટાઈપ છે. આઈ હોપ કે વિપુલભાઈને બી ક્લેરિફાઈ મળી ગયું હશે. એનીવન કેન્ડિડેટ્સ મોર ક્વેશ્ચન અબાઉટ ચિલર? હું આપણા પ્રોગ્રામ ચેરમાં પ્રિયસભાઈ છે એમને પૂછીશ કે પ્રિયસભાઈ શું ચિલર વિશે તમારું શું કેવું છે? કેમ કે અત્યારે આ સ્ક્રીનમાં મને હાર્દિકભાઈ ને પ્રિયસભાઈ બે ચિલર વાળા સામે દેખાય છે. તો થોડું પ્રિયસભાઈ પાસેથી થોડું 1 મિનિટનું આઈડિયા લઈએ કે શું કેવું સેશન રહ્યું, કઈ રીતનું નોલેજ તમને મળ્યું. અમને તો નવું મળ્યું છે સાહેબ પાસેથી, પણ ઘણું બધું મળ્યું. અરે બહુ નવું મળ્યું જાણવા, બહુ ઘણું જાણવાનું મળ્યું. ખાસ કરીને આઈપીએલવી, એસપીએલવી અને આ બધું નવું હતું. અને ટૂંકમાં ઇન્ડિયાનું માર્કેટ હવે ધીરે ધીરે આ બાજુ જ જશે. જેમ સાહેબે કીધું કે સ્ટાર રેટિંગ ફરજિયાત આવશે. તો એનાથી શું થશે કે અત્યારે આપણા માર્કેટમાં આપણે ખબર જ છે કે એનર્જી એફિશિયન્સી વિશે લોકો એટલા બધા જાગૃત નથી. ઇવન કસ્ટમર બી એટલા બધા જાગૃત નથી. તો આ વિશે એક જાગૃતતા ઊભી થશે અને મેન્યુફેક્ચરર ઉપર પણ પ્રેશર આવશે કે બેસ્ટ એફિશિયન્સી વાળું ચિલર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું એક પ્રેશર આવશે. અને સ્ટાર રેટિંગથી ક્લિયર થઈ જશે કે મતલબ આપણે જેમ એસીમાં જોઈએ છીએ, એસીમાં સ્ટાર રેટિંગ આવી ગયું છે, એમાં એવી રીતે ચિલરમાં બી આવી જશે. તો ઓલ ઓવર કન્ટ્રી માટે પાવર કન્ઝપ્શનમાં ઘણો બધો ફાયદો થશે. કસ્ટમર સમજતો થશે. અત્યારે શું છે, કસ્ટમર ફક્ત ભાવથી જ જાય છે કે ભાઈ ફલાણાનું સસ્તું છે અને તમારું મોંઘું છે. હવે આપણે ક્લિયરલી એક્સપ્લેનેશન ના આપી શકીએ કે ભાઈ શા માટે મોંઘું પડે છે, બ્લુ સ્ટારનું છે તો શા માટે મોંઘું પડે છે. પણ આ બધું હવે આવશે ધીમે ધીમે અને એજ્યુકેટ થશે જેમ જેમ કસ્ટમર, એમ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાયદો થશે. જાજુ એક્સપ્લેન નહીં કરવું પડે કસ્ટમર એન્ડ યુઝરને. બરાબર ને હાર્દિક સાહેબ? યસ એકદમ સાચી વાત કહી. બરાબર છે. પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ તમારું શું કેવું છે આજના સેશન વિશે? સોરી પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ તમારું શું કેવું છે આજના ચિલરના સેશન વિશે? કેમ કે એક્ચ્યુઅલી તમે તો આ ફિલ્ડમાં ઘણા ટાઈમ દીયા છો એટલે તમને આઈડિયા જ છે.
ના ના, ચિલર ટાઈપ ઘણા ટાઈપના ચિલર આવે છે. ઓઇલ ચિલર, વોટર ચિલર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ નું આખું માર્કેટ. રેફ્રિજરેશન અત્યારે હું કહું ચિલર ઉપર ઊભું છે એમ બી હું કહી શકું તો બી ચાલે. હીટ લોડ કેલ્ક્યુલેશન કરી અને જે ટેકનિકલ પર્સન હશે એ જ ચિલરમાં આગળ કામ કરી શકશે, અને એને નોલેજ હશે એ તો જ એની જોડે કોઈ કસ્ટમર રેટ વિશે બી કોઈ, મને ખબર છે ત્યાં સુધી રેટ વિશે બી કોઈ પૂછશે નહીં. એના રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ટેમ્પરેચર લાવવું એ જ અત્યારે મેઇન અગત્યનું છે, અને એ બી નોલેજ પર્સન હશે ને તો જ એનું જ કામ છે ચિલર વેચવું. એટલે ચિલરનો સેશન ખૂબ જ સારો રહ્યો, અને હાર્દિક સાહેબ મને મોસ્ટ એક્સપિરિયન્સ પર્સન લાગ્યા છે આ બાબતે. એમની ફિઝિકલી બી એકવાર ટ્રેનિંગ આપણા રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રમાં લેવા જેવી છે બધાને. ગમે ત્યારે કહેશું ત્યારે આવી જશે સાહેબ તો અહીંયા. હા, Sure, sir. ઓલરેડી હું પર્સનલી મળી ચૂક્યો છું એમને. પ્રશાંતભાઈ, ભારતભાઈ, પ્રશાંત કારેથા લાઈન ઉપર છે અત્યારે. કેનેડિયનમાં પ્રશાંતભાઈ એકચ્યુઅલી પાર્ટિસિપેટમાં જોવું જોશે. છે, જુઓ તો પ્રશાંતભાઈ. દેખાઈ રહ્યા છે પ્રશાંતભાઈ? પ્રશાંતભાઈ કારેદ્રા છે. પ્રશાંતભાઈ સંભળાય છે કંઈક એ વિશે બે શબ્દ કેવું રહ્યું, શું છે એક્સપિરિયન્સ? પ્રશાંતભાઈ ને હર્ષદભાઈ. હર્ષદભાઈ છે આપણે એન્જોય રેફ્રિજરેશન, એ બી ઘણા ચિલર્સ બનાવે છે, તો એમને બી હર્ષદભાઈ. પ્રશાંતભાઈ ને બોલવું હોય ને તો એમને પેનલિસ્ટમાં લીધા છે. પ્રશાંતભાઈ તમે બોલી શકો. Sir, can you put some more lights on VAM chiller? હાર્દિક સાહેબ આપના માટે એક ક્વેશ્ચન પ્રશાંતભાઈ નો છે. રિપીટ કરો ને પ્રશાંતભાઈ. Sorry. Sir, I want to get some more knowledge about, sir, VAM chiller, sir. VAM chiller, correct. VAM chillers એક બહુ મોટો ટોપિક પણ છે, તો આપણે એના આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ હિમાંશુ સર એન્ડ પ્રિય સર એઝ અ પ્રોગ્રામ છે કે આપણે એક VAM chiller માટે પણ એક સેશન, એક કલાકનું અલગ સેશન આપણે એમાં રાખી શકીએ છીએ. અત્યારનું સેશન જે હતું એ કમ્પ્રેશન, વેપર કમ્પ્રેશન ટાઈપ ઉપર હતું. એમાં પણ આપણે જોયું કે ઓલમોસ્ટ 1 કલાક આપણને ઓછો પડ્યો, રાઈટ? સેમ વે જેમ રિક્વેસ્ટ છે પ્રશાંત સરની, આપણે એક VAM chiller પણ સેશન કરી શકીએ છીએ. 1 કલાકનું એ સેશન પણ રહી શકે. મારે એમાં પણ બહુ બધા પેરામીટર્સ છે ડિસ્કશન. ઘણું બધું છે. મેં રાજેન્દ્રભાઈ સાથે પાછલી વખતે વાત કરી હતી વેમ વિશે. અને હર્ષદભાઈ એન્જોય રેફ્રિજરેશન, હર્ષદભાઈ સેક્શન ચિલર ના જે કામ કરે છે, હર્ષદભાઈ સંભળાય છે? હર્ષદભાઈ કાવાથી આવી ગયા છે, એ અનમ્યુટ કરશે તો બોલી શકશે. હર્ષદભાઈ હાઈ છે, એમને રાઈટ આપજો ને અનમ્યુટ કરવા. એમને રાઈટ અનમ્યુટ કરવા જોઈએ. રાઈટ તો છે જ. ઓકે, હા થઈ ગયું. હર્ષદભાઈ બોલી શકે છે હવે. સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. યસ બોલો. હા, સોરી, પ્રોગ્રામમાં હું થોડો મોડો થયો. આજે પ્રોગ્રામ અને છે ને પ્રિન્સભાઈ મને કીધું હતું, પણ પ્રોગ્રામમાં થોડો મોડો થયો એટલે બીજી વખત હાર્દિક સાહેબને આપણે મળશું અને અભિપ્રાય લેશું એમને. તમને કેવું લાગ્યું? એકચ્યુઅલી હું આજે મોડો થયો છું, હમણાં 10-15 મિનિટ થી જોઈન્ટ થયો છું. અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, એવું છે. આપણા યોગેશ સાહેબ ને પૂછીએ. ટ્રેઝરર સાહેબ અવેલેબલ છે? શું કહે ટ્રેઝરર સાહેબ? થોડો પ્રકાશ પાડો આજના આપણા હાર્દિક સાહેબ ના સેશન ઉપર ચિલર વિશે. ઓકે, વોઇસ બ્રેક થાય છે. હેલો વોઇસ બ્રેક. આવે છે અવાજ? હા યોગેશભાઈ તમારો સંભળાય છે, બોલો. હવે અવાજ આવ્યો. આવે અવાજ. આપણે ખરેખર આ ટ્રેનિંગ સારી રહી છે. એમાં જે લોકો જે ચિલર નું વર્ક કરે છે એના માટે બહુ સારી આ ટ્રેનિંગ રહી છે. ઓકે. હવે યોગિનભાઈ જી. હા, હવે ટૂંકમાં બખ્તાવરભાઈને આપણે રિક્વેસ્ટ કરશું કે વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપે.
ઉદયભાઈ આજે આઉટ ઓફ સ્ટેશન છે. યસ એ સાઇટ ઉપર છે. હેલો હાર્દિક સર અને સ્પેશિયલી ઈશ્રે રાજકોટ પ્રેસિડેન્ટ શક્તિ સર, યોગેશ સર, યોગીનભાઈ. આજનો આપણો જે પ્રોગ્રામ જે છે સિલેક્શન અને ટાઈપ ઓફ ચિલર જે ખૂબ જ મેન્ડેટરી હતો આપણા ઈશ્રે રાજકોટ સબચેપ્ટર માટે, અને હાર્દિક સરે ખૂબ જ ઇન ડિટેલ ટુ ધ પોઈન્ટ જે એકચ્યુઅલી નીડ હતી આપણી રાજકોટ સબચેપ્ટરની કે ચિલર માટે જે બેઝિક ફંડામેન્ટલ ગાઈડલાઇન્સ જે જરૂરી હતું એ ખૂબ જ સરસ પૂરું પાડ્યું છે. એ માટે બિહાફ ઓફ રાજકોટ ઇલેક્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઉદયસિંહ જાદવ હું હાર્દિક સરનો ખૂબ જ આભાર માનું છું. એમને એમનો અમૂલ્ય સમય અને નોલેજ આપણી સાથે શેર કર્યું, અને આ સેમિનાર રિયલી આપણા દરેકને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને અપકમિંગ ટાઈમમાં પણ જ્યારે પણ આવી કોઈ પણ ટેકનિકલ ગાઈડલાઇન્સની જરૂર હશે તો હું હાર્દિક સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ અચૂક આપણને આપશે. Thank you so much, Hardik sir, President, all members, participants. Thank you very much, all of you. Thank you. Thank you so much. Request all of you, please turn on your video. એક બખ્તાવરભાઈ એક પેનલિસ્ટ નો એક Yes, group photo માટે. ગ્રુપ ફોટો લઈ લેજો. કાપડી સાહેબ ટર્ન ઓફ કરો ને તમારો કેમેરો. અહીંયા નથી, મારો વિડિયો ઓપન ન થતો, બંધ છે ઉપરથી. આવી ગયો ફોટો આવી ગયો છે. ફૂટસ્પોટ બંધ છે ઉપરથી. બસ ઉપરથી સ્ટોપ કરેલો છે વિડિયો. Okay. ખરું એક મિનિટ. એક યોગેશ સર નો આઈ થિંક વિડિયો કેમેરો જે છે ઓન નથી થતો, બાકી બધાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લઉં છું. ઓકે આવી ગયો છે. યસ થેન્ક યુ સર. ઓકે આવી ગયો છે ફોટો. ઓકે કેમેરો સારો દેખાય છે અત્યારે. ટ્રેઝરર સાહેબનો. યસ ઓકે થેન્ક યુ સો મચ સર. ઓકે ઓકે ડન છે. રાજકોટ ટીમ. ડન છે સાહેબ.